Hello friends, today I will discuss vectors with you. Okay, it is a very important topic. Now friends, by this lecture, I hope it is clear to you that in physics we have to study first the different physical quantities, second some laws and some principles. Okay, it is the entire physics. Got it? So friends, the physical quantities, they can be divided into two categories. First, scalar quantities. Second, vector quantities. Okay. Now, since first of all, we should understand the difference between the scalar quantities and the vector quantities. This difference can be clearly understood by some illustrations. Okay? To make the difference very clear to you between the scalar and the vector quantities, I am discussing two illustrations with you. Okay? So since it is the first thing which is to be copied on paper, note it down. Now since I am talking about the first illustration. In the first illustration, since I am considering a body which is moving along the curved path. It will cover some distance in a given time interval. And then we are going to calculate the speed of the body. Okay. Let us suppose it is the curved path, say AB. It is the body which is moving along this curved path. The body is going from the point A to the point B. The body starts its journey from the point say A at time t equals to 0. The body finally arrives at this point B at time t equals to say 5 seconds. And let us suppose the length of this curved path, AB, let us suppose it is 20 meters. Got it? If suppose we want to calculate the speed of the body, then since what is required? The basic definition for speed. Speed is nothing but distance divided by time interval. Distance covered by the body divided by the time interval. We can say that the speed of the body in this particular situation, it will be the distance covered is 20 meters and the time interval is 5 seconds. Okay? So, it is say 4 meters per second. Now since when we are doing this calculation, okay, or when we want to define the speed of this moving body, then since it becomes irrelevant
कि बेटा बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, बॉडी ए से बी जा रही थी या बी से ए आ रही थी। मतलब स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी की कहीं पर भी रिक्वायरमेंट तो थी नहीं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू से दैट स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। ओके बेटा, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको कंप्लीटली डिफाइन या कंप्लीटली इंटरप्रेट किया जा सकता है ओनली बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू along with the units. Okay, sirs? That is, no direction is associated with such physical quantities. सिंपल सी बात है, समझ आ गई? ओके, बस एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, बेटा ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं इन सब को पेपर पे डाल लेना, इलस्ट्रेशंस को पेपर पे कॉपी करना। क्लियर? ओके, सो स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड और कंप्लीटली इंटरप्रेटेड by only magnitude. That is, no direction is associated with such physical quantities. Got it, students? Scalar quantities क्या होती है, शायद आइडिया मिला। ओके, चलिए सेकेंड इलस्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं। Second illustration. Let us suppose the block is placed on the surface, and I am saying that this block is under the influence of a force whose magnitude is 10 Newton. बेटा मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है फिजिकल क्वांटिटी का along with the unit। अगर है फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट है तो मेंशन किया जाता है, अगर यूनिट नहीं है तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, लेट अस सपोज से दैट दिस ब्लॉक इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स से 10 न्यूटन। गॉट इट सिंस? इट इज द डाटा व्हिच इज प्रोवाइडेड टू यू एंड द क्वेश्चन इज, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मुझे बताइए ब्लॉक अगर मूव करता है तो स्टूडेंट्स बेटा लेफ्ट में मूव करेगा या राइट में मूव करेगा? सोचिए, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, अगर सिर्फ इतना डाटा अवेलेबल है कि बेटा बॉडी है, ब्लॉक है एंड द ब्लॉक इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स से 10 न्यूटन एंड द क्वेश्चन इज वी हैव टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक। तो स्टूडेंट्स, फोर्स तो लग रहा है, अगर ब्लॉक मूव करता है फोर्स की वजह से तो अब कैसे बताएंगे कि बेटा किस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा? तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कुछ एब्सेंट है। ओके, चलिए जो एब्सेंट है मैं वो भी ऐड कर रहा हूं। ओके, पहले मैंने बोला था द ब्लॉक इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स 10 Newton, and you have to determine the direction of motion of the block. That is, the block will move either left or to right on the surface due to the force. Got it? ये पहली सिचुएशन। अभी जो मैं ऐड करने वाला हूं, let us say ये सिचुएशन, द ब्लॉक इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट।
और अब अगर मैं आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछता हूं कि आप मुझे बताइए कि ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा या राइट में मूव करेगा। अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। तो आप बोलेंगे सर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ब्लॉक तो उस डायरेक्शन में मूव करेगा, और बिल्कुल ठीक बात है। तो बेटा मैंने यहां पर जब ऐड किया कि ब्लॉक के ऊपर फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तो स्टूडेंट्स अगर ब्लॉक मूव करता है ड्यू टू द फोर्स, then only we are able to determine the direction of motion of the block. Got it? जब तक डायरेक्शन ऑफ फोर्स एब्सेंट था तब तक नहीं पता था कि ब्लॉक लेफ्ट में मूव करेगा या राइट में मूव करेगा। क्लियर हो गई बात? तो बेटा ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिफाइन या कंप्लीटली इंटरप्रेट करते हैं both by magnitude as well as direction. Okay? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन कंप्लीट तब माना जाता है जब फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी पता हो। ओके? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। बात समझ आ गई? क्लियर? तो बेटा फर्स्ट इलस्ट्रेशन में स्पीड की बात हुई थी, सेकंड इलस्ट्रेशन में फोर्स की बात हुई है। तो स्टूडेंट्स ये जो डायरेक्शन वर्ड है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है इसका आइडिया आपको लग गया है। ओके? तो स्टूडेंट्स हम डिफाइन करेंगे What are scalar quantities and what are vector quantities। मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, आप पेपर पर नोट करें। ओके? सबसे पहले लिखें स्केलर क्वांटिटीज, अंडरलाइन करिए। लिखिए बेटा these are those physical quantities which can be completely defined or interpreted by magnitude only। Example: mass, time, speed, distance, temperature, etc। बेटा सेकंड करके लिखें वेक्टर क्वांटिटीज। अंडरलाइन करिए इसको, लिखिए दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely defined or interpreted both by magnitude as well as direction। For example, displacement, velocity, acceleration, force, etc। बेटा बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स आज हमें वेक्टर स्टडी करना है, तो वेक्टर को क्लियर करने के लिए कुछ बेसिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और शायद उनका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट लेक्चर में भी। ठीक है? तो जितने बेसिक्स आज के लेक्चर में डिस्कस हो सकते हैं उतने करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। क्लियर? ओके। और याद रखें यहां से आपकी फिजिक्स पूरी तरह स्टार्ट हो चुकी है। डेली बेसिस पर लर्निंग करनी है। आज अगर लर्निंग कर ली है तो कल इसको रिवाइज जरूर करें। ठीक है? सिचुएशन हमेशा ऐसी हो कि हर लेक्चर में जितना भी आपको पढ़ाया गया है वो आपके दिमाग में प्रेजेंट रहे। जब आपके अंदर फीलिंग आए कि
बेटा लेक्चर नंबर 10th का या लेक्चर नंबर 20th में जो किया था हम उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स उसको उसी दिन दोबारा से रिवाइज करिए, क्योंकि स्टूडेंट्स सारे कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स अगर बेटा दिमाग में बैठे रहेंगे तब स्टूडेंट्स हम फिजिक्स को या फिर फिजिक्स के रीजनिंग्स और न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स फिजिक्स आपको जो पढ़ाई जा रही है वो उस स्टेज को अचीव करने के लिए पढ़ाई जा रही है कि आप हर स्टेज में तैयार रहे कि आप से अगर कोई भी क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, इट कैन बी रीजनिंग, इट कैन बी न्यूमेरिकल, इट कैन बी डेरिवेशन, ठीक है सर, तो आप ऑन पेपर उसका आंसर दे सके। और ये सिर्फ रेगुलरिटी से और न्यूमेरिकल्स की जहां तक बात है तो रेगुलर प्रैक्टिस से। ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले दिन तो आपने 10 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिए, सेकेंड डे कुछ नहीं किया, थर्ड डे कुछ नहीं किया, फोर्थ डे कुछ नहीं किया, ओके, पूरा हफ्ता कुछ नहीं किया, तो पूरे हफ्ते में तो 10 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए। तो ऐसा करें, जैसे भी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम आपके पास हो, आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल्स अ डे आप प्रैक्टिस कर लें। तो जो फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स आपने फर्स्ट डे प्रैक्टिस किए हैं उन्हीं को रिपीट करने की सेकेंड डे जरूरत नहीं है, नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को ट्राई करिए। ऐसे करके जब आप थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो स्टूडेंट्स फिजिक्स का जो लेवल है इट इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। बात समझ आ गई? क्लियर? ओके। Now the first and the most important thing is the unit vector. So इस यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन को पहले मैं डिफाइन करता हूं, क्या होता है यूनिट वेक्टर, या इसके बेसिक आइडियाज भी देता हूं। सबसे पहली चीज याद रखें, यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? इट इज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। बेटा जैसे अभी सेकेंड इलस्ट्रेशन के अंदर हमने वर्ड्स में बोला था कि द ब्लॉक इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, तो यहां पर तो वर्ड्स में बोल दिया डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको समझाने के लिए हमने वर्ड्स में बोला था, बेटा डायरेक्शन को हमेशा यूनिट वेक्टर की टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर बेसिकली स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर का, किसी भी गिवन वेक्टर का डायरेक्शन होता है। पहली बात याद रखेंगे, ये बेसिक आइडिया है, ओके। डेफिनेशन कैसे देंगे आप, डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ वेक्टर whose magnitude is unity। यूनिटी का मतलब 1, यूनिटी का मतलब 1, न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल वैल्यू 1। इट इज अ वेक्टर whose magnitude is unity and its direction is along the given vector। ओके, याद रखिए बेटा, ये जो हैश डाल के आपको बोला जाएगा कि बेसिक आइडिया है, तो ये बेसिक आइडिया होता है, ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं होता। समझ आ गई बात? तो जब डेफिनेशन की बात होगी तो जो डेफिनेशन में बोला गया है, पढ़ाया गया है, लिखवाया गया है, वो लिख के आना है। क्लियर? तो बेटा यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक वो वेक्टर होता है जो गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को डिफाइन करता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। समझ आ गई बात? क्लियर? नाउ सर, देयर इज अ कन्वेंशन
मतलब स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर्स जब भी पढ़ाए जाते हैं, जहां भी पढ़ाए जाते हैं, एक ही अप्रोच के साथ पढ़ाए जाते हैं। जब अप्रोच एक होती है तो इसको कन्वेंशन बोलते हैं। बात समझ आ गई? Conventionally, in the coordinate frame, बेटा कोऑर्डिनेट फ्रेम क्या होता है? कोऑर्डिनेट फ्रेम इज द सिस्टम ऑफ एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। क्लियर? ओके, और हम कोऑर्डिनेट फ्रेम कंसिडर करने वाले हैं जिसके अंदर हम सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस और पॉजिटिव जेड एक्सेस को कंसिडर करेंगे। क्लियर? कोऑर्डिनेट फ्रेम में तीनों एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस और पॉजिटिव जेड एक्सेस, बेटा तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, लाइक दिस। ठीक है? लेट अस सपोज से द फर्स्ट फिंगर इट रिप्रेजेंट्स the positive x-axis, this thumb it represents the positive y-axis, then this middle finger it will represent the positive z-axis. Clear? Okay? इसको बेटा 3 डायमेंशनल फ्रेम भी बोलते हैं। बात समझ आ गई? Now let us suppose say it is say the positive x-axis, it is say the positive y-axis and it is say the positive z-axis. Positive z-axis को पेपर पे तो ऐसे मार्क किया है, लेकिन आपने हमेशा ऐसे इमेजिन करना है कि positive z-axis is represented by marker, okay, and it is perpendicular to the plane of whiteboard and the whiteboard is consisting the positive x-axis and the positive y-axis. Got it? तो इस तरीके से बेटा तीनों एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। बात समझ आ गई? ओके, नाउ सिंस द यूनिट वेक्टर along positive x axis is denoted by I cap. कैसे रीड करेंगे? I cap. What is I cap? I cap is the unit vector. I cap alphabetical I की बात हो रही है, small alphabetical I. I cap is the unit vector along positive x axis. J cap is the unit vector along positive y axis, and K cap is the unit vector, small k. K cap is the unit vector along positive z axis. Got it, sirs? बात समझ आ गई? अब बेटा इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, रीड कैसे करना है, मैं अभी आपको सिखाऊंगा। सो आई कैप कॉपी करते जाए साथ साथ, इज द यूनिट वेक्टर। अब बेटा डायरेक्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे, जब डायरेक्शन की बात होगी तो यूनिट वेक्टर वर्ड यूज करेंगे। बात समझ आ गई? सो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर along positive x axis. J cap is the unit vector along positive y axis. Okay? K cap is the unit vector along positive z axis. बात समझ आ गई बेटा? I cap is the unit vector along positive x axis. J cap is the unit vector along positive y axis, and K cap is the unit vector along positive z axis. ओके? अब बेटा देखिए, जैसे पॉजिटिव x एक्सेस होता है तो नेगेटिव x एक्सेस भी होता है।
पॉजिटिव y एक्सेस होता है तो नेगेटिव y एक्सेस भी होता है, पॉजिटिव z एक्सेस होता है तो नेगेटिव z एक्सेस भी होता है। तो उस केस में ये जल्दी से कॉपी करें, कॉपी कर लें इसको। कॉपी करने के बाद चलिए मैं दोबारा कर देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं माइनस आई कैप इज द यूनिट वेक्टर along negative x axis. Negative j cap is the unit vector along negative y axis, and negative k cap is the unit vector along नेगेटिव z एक्सिस। बेटा बात समझ आ गई? कॉपी करें जल्दी से, जल्दी से कॉपी करें। जल्दी से कॉपी कर लें इसको। यस स्टूडेंट्स डन। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर्स का लैंग्वेज क्या होता है। एक लैंग्वेज होता है, वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए पहले हम वर्ड्स में एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्लियर। नाउ सपोज द फोर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन is acting along positive x-axis. The force having the magnitude of 10 Newton is acting along positive x-axis. तो स्टूडेंट्स अब इसको वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे और कैसे रीड करेंगे। तो जब भी आप वेक्टर्स को लिखें या रीड करें तो इस लैंग्वेज को हमेशा यूज करें, ठीक है। वी कैन से, बेटा जब हमने फिजिकल क्वांटिटी फोर्स की बात की है तो पहले तो उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। लेट अस सपोज से हमने कैपिटल एफ से फोर्स को रिप्रेजेंट किया है, क्लियर। ओके, जब हम बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स हम फोर्स की बात कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइंड है, दोनों पता है, तो कैसे लिखेंगे उसको। मैथमेटिकली वी आर गोइंग टू से, इसको रीड करेंगे वेक्टर एफ, मतलब आपने सिंबल के ऊपर जो भी सिंबल यूज किया है उसके ऊपर एक एरो का साइन, छोटा एरो का साइन मार्क करना है, क्लियर। इसको कैसे रीड करना है, इसको रीड करेंगे हम वेक्टर एफ। क्या बोलेंगे इसको, इसको रीड करते हैं वेक्टर एफ, क्लियर। अब क्योंकि स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैंने फोर्स को न्यूमेरिकली पेपर पे लिखना है या रीड करना है, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन है और डायरेक्शन है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। इट इज रिटन एज 10 आई कैप न्यूटन। तो स्टूडेंट्स जब ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि बेटा इस स्टेटमेंट की बात हो रही है। रीड कैसे करेंगे, वेक्टर एफ इज 10 आई कैप न्यूटन। तो इसका मतलब यह हुआ कि बेटा हम एक फोर्स वेक्टर की बात कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है।
बात समझ आ गई? क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर एफ हैज द मैग्नीट्यूड Newton and its direction is along positive x axis. ये सिंपल सी बात समझ आ गई बेटा? पता लगा वेक्टर का लैंग्वेज क्या है, कैसे रीड करना है? We are going to say vector F is 10 I cap Newton. ओके, तो 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया और I cap ने फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन कर दिया. क्लियर? ओके, तो ये जो लिखा हुआ है, what do we conclude from it? ये कंक्लूड करते हैं, ये जो लिखा हुआ है वेक्टर एफ इज इक्वल टू 10 आई कैप न्यूटन, इससे क्या कंक्लूड किया कि बेटा हम एक फोर्स वेक्टर की बात कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है. गॉट इट? इसी तरीके से अब ध्यान से दोबारा देखिए. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल क्वांटिटी से वेक्टर ए एंड इट इज रिटन एज से 2 j cap. 2 j cap. अब बेटा इसे रीड कैसे करेंगे? वेक्टर ए इज 2 j cap. तो कंक्लूड क्या करेंगे कि बेटा हम एक वेक्टर की बात कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है और डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस. क्लियर? मैं यहां पर लिख रहा हूं हाउ टू रीड इट. रीड इट और इंटरप्रेट. How to read it or interpret it? It is a vector whose magnitude is 2 units. अगर कोई यूनिट होता तो यहां पे लिखा होता, यूनिट नहीं लिखा हुआ तो सिर्फ इट कैन बी यूनिटलेस, या फिर हमने लिखा नहीं. ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड इज 2, ये भी बोलेंगे तो भी चलेगा. मैग्नीट्यूड इज 2 यूनिट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस. बात समझ आ गई? पता लग गया? ओके. इसी तरीके से लेट अस सपोज अगेन we are talking about a physical quantity which is represented by vector b, and this vector b is written as say 3 k cap. तो बेटा कैसे रीड करेंगे? It is a vector whose magnitude is 3 and its direction is along positive z direction. समझ आ गई बात? 2 बार ही लिख दिया है. अब जो मैंने बोला उसे पेपर पे डाल लें, पेपर पे डाल लें. सिर्फ ये मत लिखें ये क्या है वो भी लिखें, क्योंकि मैंने बोला है a physical quantity is represented by vector b, okay, and what we interpret from this is the magnitude of vector b is 3 and its direction is along positive z direction. okay, अब देखिए अगर कभी किसी वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस हो या नेगेटिव वाई एक्सिस हो या नेगेटिव जेड एक्सिस हो, तो पेपर पे कैसे लिखा होगा? ओके, ध्यान से देखिए. कॉपी कर लें, इसको मिटा रहा हूं, जल्दी से कॉपी करिए.
देखिए सपोज से वेक्टर ए इज रिटन एज से 2 माइनस आई कैप। बेटा ऐसे लिखा या ऐसे लिखा, वेक्टर ए इज माइनस 2 आई कैप, तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इट इज अ वेक्टर whose magnitude is 2, okay, and its direction is along negative x-axis। समझ आ गई बात? बेटा ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, मतलब एक ही होता है। इस नेगेटिव साइन को आई कैप के साथ काउंट किया जाता है, -2 रीड नहीं करेंगे, ठीक है? इसको रीड करेंगे 2 माइनस आई कैप, ठीक है? पल्ले पड़ गई बात? तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2 एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। हो गया? इसी तरीके से बेटा वाई एक्सिस का भी होगा, जेड एक्सेस का भी होगा। अब आप इजीली रीड कर सकते हैं उसको, ओके? तो स्टूडेंट्स ध्यान से एक और मेरी बात सुनिए। देखिए अभी तक तो मैंने आपको जो इलस्ट्रेशंस दी हैं उन इलस्ट्रेशंस में सिर्फ एक ही यूनिट वेक्टर नजर आ रहा था, ओके? तो काफी आसान दिख रहा था आपको, क्लियर? अब बेटा हम क्योंकि कोऑर्डिनेट फ्रेम की बात कर रहे हैं तो लोअर क्लासेस में मैथ्स में आपने वर्ड स्टडी किया हुआ है प्लेन, एक्स वाई प्लेन, मतलब एक प्लेन सरफेस विच इज बाउंडेड बाय द एक्स एक्सेस एंड द वाई एक्सेस। इसी तरीके से वाई जेड प्लेन, कोई एक प्लेन सरफेस विच मस्ट बी बाउंडेड बाय वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। इसी तरीके से ZX प्लेन, एक प्लेन सरफेस विच इज बाउंडेड बाय Z एक्सेस एंड द X एक्सेस, क्लियर? अब सपोज करते हैं कि बेटा कोई भी वेक्टर अगर प्लेन में एग्जिस्ट करता है तो उसका मैथमेटिकल नोटेशन कैसा होगा? देखिए अगर बेटा ये लिखा हो कि वेक्टर A इज रिटन एज से 2 आई कैप प्लस से 3 जे कैप, तो यहां पर स्टूडेंट्स आई कैप और जे कैप दोनों नजर आ रहे हैं आपको, क्लियर? तो आप इसको कैसे रीड करेंगे? अब आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, या इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? देखिए आई कैप ने डिफाइन किया पॉजिटिव एक्स एक्सेस, जे कैप ने डिफाइन किया पॉजिटिव वाई एक्सेस। तो सिंस वी आर गोइंग टू से दैट वेक्टर ए इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच एग्जिस्ट इन एक्स वाई प्लेन। कहां पर एग्जिस्ट करती है? एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करती है। तो वी कैन से इट इज अ वेक्टर, it is a vector which lies in x y plane। समझ आ गई बात? गॉट इट? जल्दी से कॉपी कर ले। डन? अब देखिए दोबारा से देखिए, मिटा रहा हूं इसको मैं, कॉपी कर चुके हैं शायद आप। लेट अस सपोज यहां पर मैं के कैप लिखता हूं, तो वी आर गोइंग टू से दैट इट इज अ वेक्टर व्हिच इज प्रेजेंट इन एक्स जेड प्लेन, क्लियर? इट इज अ वेक्टर इन एक्स जेड प्लेन, गॉट इट? ओके, समझ आ गई बात? ओके
अब अगर जल्दी से कॉपी कर ले, दोबारा कर रहे हैं। अब अगर हम लिखते हैं 2j कैप प्लस 3k कैप, तो बेटा j कैप ने आइडिया दिया पॉजिटिव y एक्सेस का, k कैप ने आइडिया दिया पॉजिटिव z एक्सेस का। तो वी आर गोइंग टू से दैट इट इज अ वेक्टर, it is a vector in YZ plane। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? ओके, जल्दी से कॉपी करें, फिर एक और बात बताता हूं। डन। अब लेट अस सपोज यहां पर मैं लिखता हूं से 2j कैप माइनस 3k कैप। तो याद होगा अभी हमने डिस्कस किया था, ये माइनस 3k कैप लिखा हुआ है तो मतलब क्या हुआ, 3 माइनस k कैप लिखा हुआ है। तो बेटा j ने डिफाइन किया पॉजिटिव y एक्सेस, इसको रीड करेंगे माइनस k कैप, तो माइनस k कैप ने डिफाइन किया नेगेटिव z एक्सेस। तब भी यही बोलना है कि इट इज अ वेक्टर विच इज प्रेजेंट और विच एक्सिस्ट इन YZ प्लेन। Y नेगेटिव Z प्लेन नहीं होता, Y नेगेटिव Z प्लेन नहीं होता, YZ प्लेन। तो पॉजिटिव यूनिट वेक्टर है या नेगेटिव यूनिट वेक्टर है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यूनिट वेक्टर देखिए और प्लेन को डिफाइन करिए। ये सिंपल सी बात समझ आ गई। तो कोई भी वेक्टर प्लेन में होता है तो कैसे लिखा जाता है, ओके क्लियर। अभी दोबारा करते हैं। अब अगर बेटा वेक्टर के अंदर आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों नजर आए, सपोज से वेक्टर ए इज रिटन एज से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस से 10k कैप। तो इसे कैसे रीड करेंगे बेटा? बेटा आई कैप ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस को डिफाइन कर दिया, जे कैप ने पॉजिटिव y एक्सेस को डिफाइन कर दिया और के कैप ने पॉजिटिव z एक्सेस को डिफाइन कर दिया। तो अब हम बोलेंगे कि इट इज अ वेक्टर विच एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल स्पेस, और इट इज अ वेक्टर विच एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशंस। क्लियर? 3 डायमेंशंस। तो स्टूडेंट्स 1 डायमेंशन होता है जब सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है, उसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक ही एक्सेस की जरूरत पड़ती है, तब बोलते हैं 1 डायमेंशनल। अगर प्लेन होता है तो इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल। तो प्लेन को डिफाइन करने के लिए बेटा 2 एक्सेस की जरूरत पड़ती है, कोई भी 2 हो सकती है, ठीक है। और अगर 3 डायमेंशनल स्पेस को डिफाइन करना है या स्पेस को डिफाइन करना है तो वर्ड यूज किया जाता है 3 डायमेंशंस और 3 डायमेंशनल वर्ड अगर यूज किया गया है तो इसका मतलब कोई भी एक चीज एग्जिस्ट करेगी स्पेस में, ओके क्लियर, दैट विल बी डिफाइंड बाय ऑल द 3 एक्सेस ऑफ द कोऑर्डिनेट फ्रेम। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो यहां पे क्या बोलेंगे? इट इज अ वेक्टर which exists in space, okay, or 3 dimensional frame। ये सिंपल सी बात समझ आ गई? ओके, कॉपी करें जल्दी से। ओके, अब देखिए सबसे पहली जब इलस्ट्रेशन हमने इसको स्टार्ट किया था तब हमने जब सिर्फ एक ही यूनिट वेक्टर यूज किया था तब तो हमने बेटा मैग्नीट्यूड की भी बात कर ली थी और डायरेक्शन की भी बात कर ली थी। तो स्टूडेंट्स जब वेक्टर हमारा प्लेन में है या 3 डायमेंशनल स्पेस में है
तो मैंने सिर्फ ये बताया कि वो प्लेन में है, वो 3 डायमेंशनल फ्रेम में है। क्या मैंने मैग्नीट्यूड की बात की? क्या मैंने वेक्टर की डायरेक्शन की बात की? नहीं की। ठीक है, अब देखिए, हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइंड होते हैं। हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइंड होते हैं। ओके, अब देखिए बेटा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं और गिवन वेक्टर का डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझ आ गई बात? देखिए, और ये आज का लेक्चर केयरफुली वर्ड बाय वर्ड सुनना और पेपर पे साथ साथ डालना। रनिंग में वीडियो को मत देखना। और एक और बात बताता हूं, ये जो स्टूडेंट्स वीडियोस आप देखते हैं अपने मोबाइल्स पर, लैपी पे देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप अपने मोबाइल्स पर इनको देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स लैंडस्केप मोड में देखना। मतलब जैसे ये मोबाइल है, ओके, इतनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो साइड से क्लिक करना तो वो इस मोड में आ जाएगा। ये वीडियो पूरी क्लियर होगी आपको, ओके, और इसका बेटर व्यू मिलेगा। तो लैंडस्केप मोड में देखनी है सारी वीडियोस। समझ आ गई बात? चलिए, तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने सिर्फ 2 बातें सीखी हैं। पहला, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। दूसरे नंबर पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्या करता है। तीसरा नंबर डाल देना बेटा। वो जो पहला डिस्कशन है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, उसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूं। यूनिट वेक्टर जहां से स्टार्ट हुआ है वो सेकंड है, अभी थर्ड कर रहा हूं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर सिखा दिया, अभी डिस्कस कर चुका हूं कि वेक्टर मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंटेड होता है। वेक्टर बेटा रिप्रेजेंटेड होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ यूनिट वेक्टर्स की प्रेजेंस से। ठीक है, तो मैं इन जनरल एक वेक्टर लिखने वाला हूं, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं डालूंगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज की जगह अल्फाबेट्स डालूंगा, ABC। ठीक है, ध्यान से देखिए। Let us suppose I am talking about a vector which is written as say AI cap plus BJ cap plus CK cap. Okay? तो इसका मतलब हम एक वेक्टर की बात कर रहे हैं जो 3 डायमेंशनल फ्रेम में है। बेटा तीनों यूनिट वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, आई कैप भी एग्जिस्ट कर रहा है, जे कैप भी एग्जिस्ट कर रहा है, के कैप भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आई का कोफिशिएंट हमने ए रखा है, जे का कोफिशिएंट हमने बी रखा है और के का कोफिशिएंट हमने सी रखा है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने नंबर्स नहीं डाले हैं। क्लियर? अब बेटा इस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इस गिवन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया गया था। क्लियर? कि वेक्टर एफ इज 10 आई कैप, द मैग्नीट्यूड इज 10 एंड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो स्विस यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर मैंने बताया था ये वो वाला वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये हमेशा गिवन वेक्टर के अलोंग होता है या फिर गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। स्विच जब मैं जल्दी में लिखूंगा, मैं जब लिखूंगा व्हाइट बोर्ड पे तो मेरे सिंबल्स कुछ ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो आप प्रॉपर एरोज मार्क करें। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो स्विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्लियर ऐसे लिखा जाता है या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको रीड करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। जब ये लिखा हो ना वेक्टर मॉड में लिखा हो
वेक्टर का जो सिंबल है वो मॉड में लिखा हो, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात हो रही है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिंपली सिंबल यूज किया जाएगा, उसके ऊपर एरो का साइन नहीं डाला जाएगा। तो इस फॉर्मेट में लिखा हो या इस फॉर्मेट में लिखा हो या ऐसे वर्ड में लिखा हो, तो तीनों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैं, तीनों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैं, मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। समझ आ गई बात? अब देखिए कैसे करते हैं बेटा। जो भी गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना, ध्यान से देखिए, मैं यहां पे करूंगा। ओके, तो गिवन वेक्टर के अंदर आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स, ठीक है, उनको यूज करना है। कैसे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब बेटा आई के कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करना है, ठीक है, ऐड करना है और स्क्वायर रूट लगाना है। समझ आ गई बात? तो ये क्या हो गया? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस गिवन वेक्टर। ओके, क्लियर? अब देखिए, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, बेटा यूनिट वेक्टर निकालने को बोले या फिर बोले कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, या फिर बोले डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो दोनों का मतलब एक ही है। सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो सिंबल है वो सिंबल लिखेंगे, उसके ऊपर कैप लगाएंगे, इसको बोलते हैं कैप। इसको रीड क्या करेंगे? ए कैप। इसको रीड करेंगे ए कैप। समझ आ गई बात? होता कितना है? यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिटन एज से वेक्टर ए, मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? न्यूमेरिकली यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। बात समझ आ गई? क्लियर? ओके, अब देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। वेक्टर एज इट इज कॉपी करेंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होल डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वेक्टर का बता दिया था कैसे निकालना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे निकालना है। बात समझ आ गई? तो बेटे तीसरे नंबर पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया। तो अब हमने इलस्ट्रेशंस में जो वेक्टर्स प्लेन में डिस्कस किए थे, आपका होमवर्क है उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और उनके यूनिट वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। बात समझ आ गई? क्लियर? थर्ड से पहले तक हमने जिन वेक्टर्स को डिस्कस किया है मैथमेटिकली, आज का होमवर्क आपने उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को निकालना है और उन वेक्टर्स की डायरेक्शन को निकालना है, मतलब यूनिट वेक्टर को निकालना है। समझ आ गई बात? चलिए जल्दी से इसको कॉपी करिए एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे।